نواز شریف کا نام ECL سے غیر مشروط نکالنے کی درخواست قابل سماعت قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور نیب کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت کی درخواست پر سماعت کل دوپہر 11:30 بجے ہوگی۔ حکومت نے نواز شریف کو غیر مشروع جانے کی اجازت کی مخالفت کی تھی۔ نیب نے عدالتی دائرہ اختیار چیلنج کیا تھا۔ اسٹیرائڈز اور دیگر ادویات زیادہ مقدار میں دینے کے برے اثرات، نواز شریف کے جسم پر سوجن، ڈاکٹر طاہر شمسی کی خدمات دوبارہ حاصل کر لی گئیں۔ طاہر شمسی نے نواز شریف کا معائنہ اور ادویات کی ٹیسٹمنٹ کی۔ ٹیسٹوں کا عمل دہرانے کا فیصلہ، ڈاکٹر عدنان کہتے مزید تاخیر کی گنجائش نہیں، ہر لمحہ خطرہ بڑھا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کی صحت کو سنگین ترین خطرات لاحق ہیں۔ عدالت نے کل کیس کی سماعت مقرر کی ہے۔ غیر قانونی شرط حکومت نے لگائی ہے، اس سے ہمیں ضرور انشاءاللہ ریلیف ملے گا، اور حکومت نے آج بھی اس کیس کے ساتھ سیاست کھیلنا چاہتی ہے۔ وہ نواز شریف صاحب کی زندگی سے دلچسپی نہیں رکھتی، وہ اپنے سیاسی بیانیے سے دلچسپی رکھتی ہے۔ نواز شریف کی صحت کو سنگین ترین خطرات لاحق ہیں۔ امید ہے کل نام ECL سے نکالنے کی غیر قانونی شرط سے ریلیف ملے گا۔ احسن اقبال کا کہنا ہے حکومت نواز شریف کی صحت نہیں، سیاست سے دلچسپی رکھتی ہے۔ اس کی بنیاد نفرت اور انا پر ہے۔ نفرت کے یہ بت ٹوٹیں گے۔ حکومت کے غلط اقدامات کی سزا معیشت اور عوام کو مہنگائی کی صورت میں مل رہی ہے۔ برطانیہ میں نئے انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ لیڈز میں لیبر پارٹی کے رہنما چودھری محمد فاضل کے استقبالیہ، رکن پارلیمنٹ پاپلا شیرف اور اوورسیز پاکستانیوں کی بھرپور شرکت۔ ملکی مسائل کے حل کے لیے عوام لیبر پارٹی کو ووٹ دیں، مقررین کی اپیل۔ اوورسیز پاکستانی خدمت خلق میں پیش آئرلینڈ کے شہر ویکسفورڈ میں پاکستانی شخص نے پرائیویٹ اسپتال کی بنیاد رکھ دی۔ اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و خدمات قابل تعریف ہیں، مقامی شہریوں کے اظہار خیال۔ عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك۔ پاکستان سے آئے نعت خواں اور قرہ حضرات کے اعزاز میں پروقار اشعیہ، خوبصورت قرت اور مسحور کن نعت خوانی سے فضا گونج اٹھی۔ حاضرین محفل جھومتے رہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے۔ ڈنڈی کی فضا مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بابرکت محفل میں علماء کرام، مشائخ اعظام کی بھرپور شرکت، سیرت طیبہ کے روشن پہلوؤں پر ایمان افروز خطاب۔ احمد رضا قادری نے گلہائے عقیدت پیش کیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض جدید روپ اختیار کرنے کو تیار، مستقبل کی تعمیرات کے حوالے سے رائل کمیشن کا خوبصورت سمپوزیم۔ شہریوں کی سہولت اور تفریح کے لیے میگا منصوبہ کا اعلان، عالمی سفارتکار اور میڈیا کے نمائندے شریک۔ امریکی کانگریس کی سب کمیٹی برائے انسانی حقوق کا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر دوسرا اہم اجلاس، بھارتی مظالم کے بارے میں سفارشات ایوان نمائندگان کو بھیجنے کا فیصلہ۔ نیو یارک میں کوئنز ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس کی پاکستانی امریکن میڈیا کے ساتھ پہلی نشست، اوورسیز پاکستانیوں کو بلا تفریق قانونی معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی، دھوکے فراڈ کا نشانہ بننے والوں کو فوری رابطہ کرنے کی ہدایت۔
सऊदी शहर जद्दा में 4 रोज़ा फूड एक्सपो इख्तिताम पजीर हो गया। पाकिस्तानी चावल के मयार और खुशबू ने सऊदी शहरियों के दिल मोह लिए। इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तानी ताजिर को गोल्ड मेडल और एजाज़ी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। काश में तेरे हंसी हाथ पे कंगन होता तो बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको और बेताबी से फुर्सत के खजा लम्हों में तो किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा। जर्मनी के शहर ऑफनबाख में एक शाम सैयद वसी शाह के नाम अदबी रंगों से सजी तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। वसी शाह ने खूबसूरत कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, क्या पिट चुका है मेरिट का नारा? क्या मफाहमत ने मज़ाहमत पर गलबा पा लिया? कैसे बंद होगा डार्क वेब का धंधा? कहां बिक रही है डॉलर्स में ताज़ा हवा? ये तमाम खबरें शामिल है इसी बुलेटिन में, मगर पहले जिक्र उस शर्त का जो बीमार नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की रास्ते में हायल है। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने की दरखास्त काबिल समाअत करार देते हुए विफाक का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। अदालत ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए कल ही तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ का नाम ECL से गैर मशरूत तौर पर निकालने की दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। मजीद कार्रवाई के लिए विफाक, नैब और वकला को तलब कर लिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए तासुर नहीं देना चाहते कि समाअत में जल्दी की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा इंसानी बुनियादों पर ही नवाज शरीफ के लिए इंडेमनिटी बॉन्ड्स की पाबंदी लगाई। जल्दी थी तो बॉन्ड्स जमा करा देते, मामला पीर तक मुलतवी किया जाए। विफाकी हुकूमत और नैब ने शहबाज शरीफ की तरफ से दरखास्त और अदालत के दायरा इख्तियार पर एतराज किया। विफाकी हुकूमत ने 45 सफ़हात पर मुश्तमिल शिकवार जवाब अदालत में जमा कराया और गैर मशरूत जाने की मुखालिफत की। विफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ का नाम नैब के कहने पर ECL में डाला गया। नैब ने कहा लाहौर हाई कोर्ट को समाअत का इख्तियार नहीं, ECL से नाम निकालना विफाक का काम है। सजा याफ्ता शख्स को पेश करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा लाहौर हाई कोर्ट समाअत का इख्तियार रखती है, कई फैसले हमारे मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। परवेज मुशर्रफ का नाम भी ECL से निकालने की मिसाल मौजूद है। वकील ने कई फैसलों की कॉपियां भी पेश कर दी। अमजद परवेज एडवोकेट ने नवाज शरीफ का वकालतनामा भी पेश कर दिया। उस पर जस्टिस अली बाकर नजफी ने वफाक का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए हम ऐसे शख्स का केस सुन रहे हैं जो काफी बीमार है। आज तक किसी मुजरिम का नाम ECL से नहीं निकाला गया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर खान ने नून लीग को नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत से बाज रहने का मशवरा दे दिया। इंडेमनिटी बॉन्ड कोई तावान नहीं, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो नवाज शरीफ से वापसी की जमानत मांगता है। ये रियायत सिर्फ नवाज शरीफ को दी गई है। इंडेमनिटी बॉन्ड की आड़ में ये तावान लेना चाहते हैं, कौम को एक और धोखे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ये देखें हमने नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से 7.5 अरब रुपया निकलवा दिया। ये तावान क्या होता है? तावान होता है कि अगर कोई किडनैप करे और उसका रैंसम ले, उसको तावान कहते हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर ने मुस्लिम लीग नून पर नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत का इल्जाम लगा दिया। 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा आज तक किसी मुजरिम का नाम ECL से नहीं निकाला गया। हुकूमत ने नवाज शरीफ को रियायत दी है, इस पर सियासत न की जाए। अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ के इल्जाम का जवाब देते हुए बताया कि इंडेमनिटी बॉन्ड कोई तावान नहीं, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो नवाज शरीफ से वापसी की जमानत मांगता है। ये तावान क्या होता है? तावान होता है कि अगर कोई किडनैप करे और उसका रैंसम ले, उसको तावान कहते हैं। न यहाँ पे किडनैपिंग हो रही है और न कोई पैसा मांगा है। जो डॉक्यूमेंट मांगा है वो एक कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर के लिखा जाएगा कि इन केस मैं वापस नहीं आता हूँ या अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते हैं तो ये पैसा वसूल कर लिया जाएगा। अगर वो वापस आ जाते हैं तो फिर उस सूरत में वो डॉक्यूमेंट बेकार हो जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सराहते हुए कहा नून लीग से ज्यादा इमरान खान को नवाज शरीफ की सेहत की फिक्र है। अब शरीफ फैमिली को नवाज शरीफ के इलाज में मजीद देर नहीं करनी चाहिए। हुकूमत का मौक़िफ़ आपने जान लिया, नवाज शरीफ की सेहत का अहवाल भी जान लीजिए। लीगी कायद की सेहत बदस्तूर तशवीशनाक है। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने फौरी बैरून मुल्क जाने का मशवरा दे दिया। कराची से डॉक्टर ताहिर शम्सी नवाज शरीफ के मुआयने के लिए दोबारा लाहौर पहुंच गए।
नवाज शरीफ साहब की सेहत को संगीन तरीन खतरात लाहक हैं। गैर कानूनी शर्त लगाई है उनके ECL के नाम हटाने के साथ। लीगी कायद नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर तशवीशनाक है। ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने कहा, ताख़ीर नवाज शरीफ की सेहत और जिंदगी पर संगीन असरात मुरतब कर सकती है। फिल फौर बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत की बुनियाद नफरत और अना पर है। ऐसा न हो कि नफरत की आग इतनी भड़का दें कि वो आपके दामन को ही जला दे। हुकूमत ना आइन से कोई ताल्लुक रखती है, ना कानून से कोई ताल्लुक रखती है, ना सियासत से, ना जमहूरियत से। ये गैर इंसानी रवैयों की हुकूमत है जिसकी सिर्फ और सिर्फ बुनियाद नफरत के ऊपर है और अना के ऊपर है। लीगी रहनुमा ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि कल नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की गैर कानूनी शर्त से रिलीफ मिल जाएगा। और अब कुछ जिक्र मौलाना फजलुर रहमान के प्लान बी का, जो हुकूमत के साथ साथ आवाम को भी काफी टफ टाइम दे रहा है। JUI ने दूसरे रोज भी सूबों को मिलाने वाली शाहराहों पर धरने दिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, 24 घंटे में पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया, हुकूमत को एक और झटका देकर गिरा देंगे। आजादी मार्च का प्लान बी, नौशहरा में हकीमाबाद के मकाम पर दूसरे रोज भी धरना। सुबह कारकुनों की तादाद कम थी, ताहम जुमा और खाने के बाद बाकायदा आगाज हुआ। कारकुनों की 4 सदा के मशहूर मोटे चावल और आलू गोश्त से तवाज़ो की गई। कराची में हब रिवर रोड पर धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। हब रिवर रोड पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। शुरका ने नमाज जुमा भी हब रिवर रोड पर ही अदा की। मोचको थाने में JUI सिंध क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सक्खर में प्लान बी बारिश की नजर हो गया। कौमी शाहरा, रोडी बाईपास और पन्नू आकल में धरना खत्म करना पड़ा। वहाँ से कारकुन ठेरी बाईपास पहुँचे और पंजाब से कराची जाने वाली ट्रैफिक बंद कर दी। हुकूमत की चूल्हे हिल चुकी हैं, दरख्त के जड़ें काट दी गई हैं, दीवार हिल चुकी है और अब हमने उसे एक आध झटका देकर गिरा देना है। आज सबसे बड़ा पत्थर इस वक्त की नाजायज हुकूमत है और हमने अवाम की ताकत के साथ इस पत्थर को रास्ते से हटाना है। तौंसा शरीफ में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम इंडस हाईवे को बंद कर दिया गया, जिससे कराची से पेशावर और रावलपिंडी की ट्रैफिक बंद हो गई। डेरा गाजी खान और मुल्हिका रोड भी ब्लॉक रहा। रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। चकदरा में तकरार भी हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने सड़कों की बंदी से रोक दिया। अदालत ने कहा, हुक्म जारी कर रहे हैं, अमल दरामद करना हुकूमत का काम है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। लेबर पार्टी के रहनुमा चौधरी मोहम्मद फाजिल की तरफ से इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेयर कर्कलिस काउंसिल चौधरी मोहम्मद मुमताज, मेंबर पार्लियामेंट पोला शेरिफ और दीगर शरीक हुए। आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। लेबर पार्टी ड्यूसबरी के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद फाजिल ने कर्कलिस काउंसिल के मेयर काउंसलर चौधरी मुमताज के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की, जिसमें मेयर चौधरी मुमताज समेत मुतअद्दिद सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। इस मौका पर खिताब करते हुए मेयर मुमताज, रुकन पार्लियामेंट पोला शेरिफ और दीगर ने कहा, आवाम अपना हक के राय दही का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और आने वाले इलेक्शन में ऐसी पार्टी को सपोर्ट करें जो बरतानिया को बहरान से निकाल सकती है। दूसरी जानिब मेंबर एग्जीक्यूटिव लीड्स काउंसलर मोहम्मद रफीक, साबिक काउंसलर ड्यूसबरी चौधरी रजाक, चौधरी अल्ताफ, नंबरदार अकरम और दीगर ने कहा, लेबर पार्टी ही मसला कश्मीर समेत बरतानिया के अवाम की बेहतरी के लिए काम कर सकती है। सब दोस्तों ने यही बात की है कि चूँकि पोला शेरिफ कश्मीर काज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे जो ड्यूसबरी का एरिया है उसके लिए भी ये काफ़ी दौड़ धूप कर रही है। सबसे अच्छी बात है ये कि बड़ी बुलंद बाखलाक है। हमारी दुआ है कि वो एक अच्छी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अच्छा काम किया है, अच्छी तरह से हम अपनी जो कम्युनिटी है यहाँ का, खासकर मुसलमान की जो कम्युनिटी है उसने अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है और बिलखुसूस जो है ना कश्मीर पे इश्यू पे उसने जो है ना हमेशा जो है ना सफ़े अव्वल में रही है। Our MP Paula Sharif, who is up for election, and I would like as a mayor to ask all our Asian community and the wider community to support Paula for the election. We have a UK general election on the 12th of December and it's been good to chat with everybody this evening about what I hope to do if I'm re-elected as the Member of Parliament for Dewsbury, and thank you all for your support, it's much appreciated. I just want to send a clear message out to our brothers and sisters across the UK and locally. On the 12th of December, please come out and vote and put a cross against the Labour Party
For the past 9 years, we have seen austerity and poverty rise in the UK. आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। कैपिटल स्मार्ट सिटी के ज़ेरे एहतमाम बर्मिंघम के मकामी होटल में प्रॉपर्टी शो मुनक़िद किया गया। शो में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत करके इस प्रोजेक्ट को खूब सराहा और इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर मुंतज़मीन का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दिलचस्पी उनकी आला सर्विस और एतमाद की बदौलत मज़ीद बढ़ गई है। मज़ीद अहवाल आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानियों की कैपिटल स्मार्ट में बढ़ती दिलचस्पी जहां ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवानों को अपने मुल्क की तरफ रागिब करेगी, वहीं पाकिस्तान की मईशत को भी मजबूत करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के ज़ेरे एहतमाम प्रॉपर्टी शो के मौके पर मुंतज़मीन का कहना था कि ये रवां साल का चौथा प्रॉपर्टी शो है और बरतानिया के दूसरे बड़े बैनुल सकाफती शहर बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी पर एतमाद का इजहार किया है वो काबिल तहसीन है। मुंतज़मीन का मजीद कहना था कि अपने कस्टमर्स की सहूलत के लिए लंदन ऑफिस कायम कर दिया गया है ताकि इन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इनका मजीद कहना था कि बरतानिया और यूरोप में बसने वाले 4000 के लगभग कस्टमर्स हैं और इसके डेवलपर हबीब रफीक लिमिटेड है जिसका नाम ही एतमाद है और हजारों की तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एतमाद करते हुए प्लॉट्स लिए हैं। इस मौके पर मुंतज़मीन मुजीब अहमद और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियल एस्टेट पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने और ओवरसीज को मुल्क के साथ जोड़े रखने में अहम किरदार अदा कर रही है। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है एंड बिकॉज के अभी जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट में काफ़ी बेहतरी आ रही है, उससे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये हमारा सेकंड लास्ट इवेंट है, नेक्स्ट हम स्लाव कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के बारे में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन इवेंट्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाई है एंड we've had a very good response. It's the smart city which give you all the smart way of living, which is like Singapore, Manhattan, so you will get all the benefits what a smart living is in the world at the moment. हमारा 4th रोड शो था 2019 का यूके में इन बर्मिंघम। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा हमें, काफ़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उसने विजिट किया। यू नो इट्स वाज अ वेरी बिजी डे। हमारे ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ प्लॉट्स हमने यूके में सेल किए हुए हैं ऑल ओवर यूरोप। हम कस्टमर केयर के लिए अपने ऑफिसेज ओपन कर रहे हैं ऑल ओवर यूके एंड यूरोप और इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इस मौके पर नए आने वालों को पाकिस्तान में जारी प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई और मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ से भी आगाही दी गई। दियारे गैर में बसे पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क का नाम एक बार फिर रोशन कर दिया। आयरलैंड में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने प्राइवेट अस्पताल की बुनियाद रखकर दियारे गैर में तारीख रकम कर दी। यह अस्पताल वैक्सफोर्ड शहर और गिरदोनवाह के इलाकों के लिए नेमत से कम ना होगा। इसी पर देखिए फैसल मिर्जा की ये रिपोर्ट। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों ने जरूरतमंदों की मदद करने की रवायत बरकरार रखते हुए 7 समुंदर पार भी सब्ज हलाली परचम की शान बरकरार रखी। आइलैंड के शहर वैक्सफोर्ड में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने सलेनी क्लिनिक के नाम से प्राइवेट हॉस्पिटल का संग बुनियाद रख दिया। यह हॉस्पिटल 72 बेड्स पर मुश्तमिल होगा जिससे वैक्सफोर्ड और गिरदोनवाह के इलाकों के अवाम के हेल्थ केयर की जरूरियात को पूरा किया जाएगा। इस वक्त इस इलाके के लोग हॉस्पिटल न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तकरीब के शुरा को इस प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग देते हुए प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर सुहेल खान ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन हासिल कर ली गई है और वो प्लानिंग परमिशन की जानब से सर्टिफिकेट के मुंतजर हैं। इसके बाद इसकी तामीर का अमल शुरू हो जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल डेवलप करने जा रहे हैं। इसमें हमारे साथ न सिर्फ आयरिश कंसल्टेंट्स हैं बल्कि पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। मेडिकल फील्ड यहाँ पे काफ़ी महंगी है और आम सहूलियात मैसर करना हुकूमत के लिए मुश्किल है, तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल बनाएं जहाँ पे ऑल स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अवेलेबल होंगी और ये हम पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं। तकरीब में लोकल बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने इस नेक मकसद पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स की काविशों को बेहद सराहा। बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में आयरलैंड में भी पाकिस्तानियों की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो। We have come all the way from Dublin down to Wexford to be the part of this great win and we will be very supportive throughout till the end for this project. I'm Anthony Murphy at Arcadia Architects. We're the architects for the new Slaney Clinic private hospital in Wexford Town, Ireland. It's a good decision कि यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल बने because यहाँ आयरलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हॉस्पिटल्स की और प्राइवेट हॉस्पिटल्स especially they are doing good job. It's a high-tech, state-of-the-art building with a lot of services, surgical services, which will be available for the patients of the southeast, which to date have not been available. I would just like to take this opportunity to wish Slaney Clinic every success in their endeavours to deliver this massive investment for
County Wexford with a population of over 150,000 people. We currently have a HSE system health service that is at capacity, and this move and development is certainly to be welcomed. This private clinic will tackle on the issue of the waiting patients. There are 1 million patients around Ireland and in Dublin waiting to be looked at. This is a huge investment, a €40 million investment into County Wexford with a potential of just over 100 jobs at the start off. This is the first time that something of its size, that is like a private medical clinic, is coming to County Wexford. I think it is hugely exciting. मकामी अफराद को दारुल हुकूमत डबलिन या दूसरे बड़े शहरों की तरफ इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन इस हॉस्पिटल की तामीर के बाद काफ़ी हद तक इनका यह मसला हल हो जाएगा। डबलिन से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वैक्सफोर्ड सिटी में पाकिस्तानी और उनके जो दोस्त हैं यहाँ लोकल, उन्होंने ये इनिशिएट किया है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी हॉस्पिटल की जो नीड है उसे पूरा करने के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। जगह हासिल कर ली गई है और इस वक्त जो इनकी जो एप्लीकेशन है वो प्लानिंग परमिशन के पास जा चुकी है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसे अप्रूव कर लिया जाएगा। पाकिस्तानियों की जानिब से यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनके लिए ये तोहफ़ा से कम नहीं है। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, वैक्सफोर्ड, आयरलैंड। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दूसरे शहरों की तरह डंडी स्कॉटलैंड में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अकीदत व एहतराम के साथ जारी व सारी है। इसी सिलसिले में डंडी की मशहूर कारोबारी शख्सियात के यहाँ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी हजरात ने बड़ी अकीदत व मोहब्बत से शिरकत की। इसी पर देखिए कैसर हबीब की ये रिपोर्ट। डंडी की मशहूर कारोबारी शख्सियत के यहाँ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। महफिल का बाकायदा आगाज़ अलहाज शौकत अली ने तिलावत कुरान पाक से किया, जबकि सनाखा हजरात ने हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। हाफिज अल्लामा उस्मान अल अज़हरी ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुदल्लिल गुफ्तगू की। उन्होंने कहा, आका अलैहिस्सलाम वजह कायनात हैं, वो न होते तो कुछ भी न होता। पाकिस्तान से आए हुए मारूफ नात खां हाफिज अहमद रजा कादरी ने अपने मखसूस अंदाज में हजूर अलैहिस्सलाम की मदह सराई की। इस दौरान महफिल दरूद सलाम और सरकार की आमद मरहबा की सदाओं से गूंजती रही। महफिल के शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बाबरकत महफिल के हवाले से कुछ यूं इजहार ख्याल किया। We were very happy to see all the brothers, everyone was good attendance, and inshallah I think the Milad went beautifully. Everyone enjoyed it, especially the children as well. And I think it's important that the children know what the Milad is all about. And alhamdulillah, it was a very good result today. alhamdulillah आज की ये मिलाद शरीफ की महफिल का इनेकाद किया गया मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद रशीद साहब के घर, और तमाम दोस्तों ने माशाल्लाह पार्टिसिपेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम डंडी में तमाम अहलियान डंडी आशिकान रसूल इसी तरह सरकार की महफिल सजाते रहेंगे। Really appreciate it as a family. Love you all. Thank you very much for for everything that you've done and the involvement. Lovely program. ਅੱਜ महफिल ਤੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਨਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਵੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, सब का बहुत शुक्रिया महफिल ते आए ने। वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए महबूब आपके ज़िक्र में आने वाली हर घड़ी पहले से बेहतर होगी। इसलिए हम देखते हैं और इस पे हमें ताज्जुब नहीं है, बल्कि हम शुक्राना अदा करते हैं कि हम भी उन खुश नसीबों में से हैं कि जो दिन ब दिन हम भी और हमारे बच्चे भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में मशगूल और मसरूफ़ हैं। आखिर में मेज़बान महफिल ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जबकि अल्लामा सैयद इजाज़ हुसैन शाह ने दुआ करवाई। डंडी में मशहूर कारोबारी शख्सियत के यहाँ महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान से आए हुए हाफिज अहमद रजा कादरी ने एक समा बांध दिया और उशकान मुस्तफ़ा के दिलों को गरमाया। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। डेनमार्क में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। आरूस में होने वाली मिलाद की रूहानी महफिल में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। तनवीर नकवी की रिपोर्ट। डेनमार्क के दूसरे बड़े शहर आरूस में पाकिस्तानी मदनी मस्जिद के ज़रिए एहतमाम मिलाद की रूह परवर महफिल सजाई गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर सनाख्वां हजरात ने सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नजराना अकीदत पेश किया। हाई अकीदत पेश करने वालों में हुसनैन राशिद, चौधरी शमरेज, राजा अकबर और दीगर शामिल थे, जबकि इदारा मिनहाजुल कुरान और डंसा के सदर अल्लामा नदीम यूनुस, मदनी मस्जिद कोपनहेगन के कारी
सदर फैज़ रसूल और दीगर ने अपने खिताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। प्रोग्राम में कुरानदाजी के जरिए उम्रे का टिकट दिया गया, जबकि आखिर में हाज़रीन ने खड़े होकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अमरीकी कांग्रेस की सब कमेटी बराए इंसानी हुकूक का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की सूरत हाल पर दूसरा आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में सिफारिशात तैयार करके ऐवान नुमाइंदगान को भेजी जाए। अमरीकी ऐवान में एक बार फिर मसला कश्मीर की गूंज। कांग्रेस की सब कमेटी बराए इंसानी हुकूक का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की सूरत हाल पर दूसरा आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें 7 अरकान कांग्रेस शरीक हुए। इजलास में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इंसानी हुकूक की पामाली पर तफसीली बहस की गई और तशवीश का इजहार किया गया। इस मौके पर सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। इस ह्यूमन एट्रॉसिटी को खत्म करना तो उन्होंने लाजिम मलजूम करार दिया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यूएन के अंदर जो रेजोल्यूशन मौजूद हैं उसके तहत इस कश्मीर के मसले का हल होना जरूरी है। Really investigated the context of the dispute and firmly established that there was a dispute that needed resolving. इजलास के बाद मुंतजमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आइंदा के लाहे अमल से आगाह किया। इजलास को मकबूजा कश्मीर की आवाज दुनिया भर में बुलंद करने के हवाले से अहम करार दिया जा रहा है। अमरीकी कांग्रेस अरकान के सामने मसला कश्मीर उठाने में पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी डॉक्टर तशवीन कयूम और उनकी टीम की कोशिशें भी शामिल हैं। क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने पहली बार पाकिस्तानी अमेरिकन मीडिया के साथ एक नशिस्त का एहतमाम किया। मुलाकात में मीडिया को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के फ़राइज़ और दीगर कम्युनिटी की तरह क्वींस में रहने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन को कानूनी इमदाद मुआवनत के हवाले से बताया गया। इसी पर देखिए खुर्रम शहजाद की ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस बराए तारकीन वतन ने पाकिस्तानी अमेरिकन मीडिया से मुलाकात के बाद ब्रीफिंग भी दी। साफियों से बातचीत करते हुए सेक्शन चीफ मतबियूई का कहना था कि क्वींस जहां 80,000 से जायद पाकिस्तानी रहते हैं, उन्हें भी कानूनी मामलात दरपेश हैं और उनका ऑफिस इस सिलसिले में पाकिस्तानी कम्युनिटी को हर मुमकिन मदद फराहम करने को तैयार है। सेक्शन चीफ ने वाज़ेह किया कि कानूनी हैसियत से कता नज़र वो तमाम अफराद की मदद के लिए बैठे हैं, लिहाजा किसी को इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं कि किसी का क्या स्टेटस है। फ्रॉड, धोखाधड़ी और दीगर जराइम का शिकार अफराद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। मैथ्यू का मजीद कहना था कि आज उनकी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से पहली बाकायदा मीटिंग है। ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। मीटिंग का एहतमाम पाकिस्तानी अमेरिकन नौजवानों की नुमाइंदा तंजीम अमेरिकन पाकिस्तान पब्लिक एडवोकेसी ग्रुप की जानिब से किया गया था। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, अमरीका। जद्दा में 4 रोज़ा फूड एक्सपो अपने इख्तिताम को पहुंच गया, जिसमें पाकिस्तानी स्टॉल्स अपनी मसनूआत के साथ शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल खालिद मजीद ने पाकिस्तानी ताजरों से मुलाकात करके उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। उनका मजीद क्या कहना था, देखिए अदील रियाज की इस रिपोर्ट में। नुमाइश के हवाले से पाकिस्तानी ताजरों का कहना था कि सऊदी अरब एशियाई खुरानोश की बड़ी मार्केट है। नुमाइश के जरिए उन्हें मसनूआत मकामी मंडी तक पहुँचाने में काफी हद तक मदद मिली है। उन्होंने एक बार फिर कौंसल जनरल का भरपूर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कौंसल जनरल खालिद मजीद ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा, सऊदी अरब इस वक्त 2.5 अरब की मार्केट है, जिससे तमाम पाकिस्तानियों को फायदा उठाना चाहिए। उनका कहना था कि पाक सऊदी तिजारत के फरोग के लिए कौंसल खाना हर मुमकिन इकदाम करेगा। सऊदी अरब एक बहुत बड़ी मार्केट है। अलोन फूड प्रोडक्ट्स में ये तकरीबन $2.25 बिलियन की मार्केट है, जिसमें पाकिस्तान का टोटल शेयर जो अराउंड 400 मिलियन है। तो हमारी उम्मीद है कि इस किस्म के इवेंट्स में पार्टिसिपेशन से हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे ताजर अफराद हैं जो इस छोटी मार्केट में आना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा ओकेजन है। फूड एक्सपो में पाकिस्तानी फूड आइटम्स अपने म्यार और पैकिंग के बायस सऊदी शहरियों की तवज्जो का खास मरकज बनी रही। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा, सऊदी अरब। जर्मनी के शहर ऑफनबाख में एक शाम वसी शाह के नाम से अदबी नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी वसी शाह थे। असगर मिर्जा की रिपोर्ट। काश में तेरे हंसी हाथ पे कंगन होता तो बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के खजा लम्हों में तो किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा
हजारों मौसमों की हुक्मरानी है मेरे दिल पर वसी, मैं जब भी हंसता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। वसी शाह दुनिया भर में अदब के हवाले से एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। इनके शोहरा आफाक शायरी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जर्मनी के शहर आफनबाग में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर बट और शेराज गेलानी की जानिब से अदबी नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी शोरा के अलावा अदब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। सबको ही खबर थी तेरी यारी, मेरे यारा बस वक्त गुजारी है निभाने के लिए नहीं। वसी शाह ने अपनी कुतब मुझे संदल कर दो, मेरे हो के रहो, आंखें भीग जाती हैं, मेरे ख्वाब तुम्हारी आंखें में से अपना कलाम पढ़कर सुनाया। 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए वसी शाह का कहना था कि अदब ही वो चीज है जो माशरों को आगे लेकर जा सकता है। अदब ही बताता है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे बैठता है, इसकी आदात और त्यौहार कैसे हैं। हम साइंस या इंजीनियरिंग से मशीनें तो समझ सकते हैं, मगर इंसान या इंसानी माशरे को समझने के लिए अदब का इंतहाई कलीदी किरदार है। देखिए, अदब ही वो चीज़ है जो माशरों को आगे लेकर जा सकता है, इसलिए कि जो माशरे हैं, इंसान को आप कैसे समझेंगे? इंसान को आप इंजीनियरिंग के ज़रिए तो नहीं समझेंगे। इंजीनियरिंग के ज़रिए तो आप मशीनें समझते हैं, आप तिब के ज़रिए भी नहीं समझ सकते हैं। तिब के ज़रिए आप उसकी बॉडी समझते हैं, जो उसका सोल है, जो उसकी साइकी है, जो उसकी आदात व अतवार हैं, उनको आप समझेंगे अदब के ज़रिए। यूरोप में परवान चढ़ने वाले पाकिस्तानी नस्ल के लिए अपने पैगाम में वसी शाह का कहना था कि नौजवान नस्ल को लिटरेचर मुशायरों से मुंसलिक तकरीबात में ज़रूर लेकर जाना चाहिए। इससे उन्हें अपने कल्चर, अपनी ज़मीन और अपने हेरिटेज से जुड़े रहने का मौका मिलेगा, क्योंकि अदब ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने वतन और अपनी मिट्टी से जोड़े रखता है। और अब मौसम की सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कालाम, मालम जब्बा और मट्टा में वक्फे से बर्फबारी। वादी अलीपा और ग्रेस वैली में राब्ता सड़कें बंद, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सड़कें, मकान, दरख्त, हर शय बर्फ में गुम। आसमान से गिरते रुई के गालों ने मनाजिर ही बदल दिए। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों सवात, मानसहरा, मालाकंड, हजारा, गिलगित समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। सवात की वादी कालाम, मालम जब्बा और मट्टा में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। लोग दिलकश मनाजर में खो गए। स्कर्दू, गोपस, पाराचनार, मेंगोरा, दीदबाला, हंगू में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें बंद हो गई। मवासलाती निजाम भी बैठ गया, जिसकी वजह से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।